Okay. Sandeep, Tripti ma'am is there? No, ma'am. No, ma'am. No. Okay, I think she'll be joining. No. Okay. Okay. First of all, I think everyone should unmute. Every should mute yourself except speakers. Thank you everyone for coming to this webinar. I just want to say that to all my esteemed colleagues and seniors who are embodiment of hardship and portrayal of self-achievements and role model for me. I welcome everyone for this webinar. First of all, I introduce myself. I'm Shruti Dua, founder of a company named Studio Trinetra and influencer of Home Innovator Muradabad. I do the creative work. I try to make best out of raw, like in acrylic or composite wood. So like I make personalized diaries, wedding boxes, and according to budget, I also customize things. Right now I have these earrings I'm wearing. This is fashion jewelry also. I'm doing this. So you can follow my page on Studio by the name of Studio Trinetra in Instagram. And अभी जो COVID से related है, so I've started this making these face shield masks. I think this is very helpful for everyone and very economical also. So this I'm doing this. So rest I will start. Also, I'm giving 20% off to senior citizens. So I think it will be helpful to them also. Also, I feel lucky that through Women Innovator, I am able to speak my thoughts, what I feel, what I want to do for some, you know, कभी आप चाहते हो कुछ करना लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं. That sometimes किसी से बात होती है कि somebody says कि नहीं, my parents are like that, they are not able to, you know, कुछ queries जो नहीं solve कर पाते हैं. So regarding that, now time has realized that money has nothing to do with this. Your health, your relations, and you yourself can help yourself. After thinking and listening so many people, I realized that your links, your contact, your social media are so beneficial. So this gave me a thought, let's do a webinar. So मेरी सोच को तृप्ति वुमेन इनोवेटर की आवाज ने सच कर दिया. And I am very thankful to Tripti and that I am associated with her and all jury members who really, you know, helped me to do this. अभी मैं सबसे पहले शिखा जी का, मैम शिखा गुप्ता जी का इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. She is a prestige jury member of founder of C.L. Gupta Institute, who will always motivate us, the young generation, with their new ideas and also to implement our new ideas. Karo, I am there. You know, I feel like now she's a mom of Muradabad. और मेरा क्वेश्चन अब उनसे ये है, शिखा जी से, कि if you make WhatsApp senior citizen, आपको लगता है it will be helpful for them, or we can add some doctors phone number, contact numbers, or SOS emergency number. So maybe, do you really think it? 1 minute. No. Hello. Voice Sorry, is I not. have to interrupt. Sorry, I have to interrupt. Someone is there on the call, I think. So it is disturbing. We have to mute everyone. So we are muting everyone. That's not a problem. I think the voice from Shruti's end is not clear. Shruti, can you just? Hello, am I audible? Now it's fine. Yes. Yes. Okay. So मैं सबसे पहले शिखा गुप्ता जी को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ. She is prestige member, founder of CLI Institute, who has always motivated new generation with their new ideas, also help to implement it. तो मेरा क्वेश्चन उनसे है कि अगर हम सीनियर सिटीजन्स का व्हाट्सएप ग्रुप, hello, now am I? Voice not coming. Hello. Yes. Hello. Your voice. You can start now. You can try now, Shruti. Okay. From starting, or should I introduce from the introduction? Yeah. This is fine. I think you're asking Shikha ji about. Yeah.
Carry on with the question. शिखा गुप्ता जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं सीनियर सिटीजन्स का विद सम डॉक्टर नंबर्स और कुछ SOS emergency numbers in case when they need, तो it will be helpful, will it be helpful? सबसे पहले मैं तो सबको नमस्कार कहती हूँ, सबको श्रुति को बहुत बहुत थैंक्स कि उसने हम सब लोगों को जोड़ा, इतने एफर्ट्स किए। और अल्पना जी दिख रही थी मुझे इसमें, प्रिया थी, और जो भी लोग हैं, डॉक्टर भास्कर, सबको मेरा सादर नमन। ये बहुत अच्छी पहल है श्रुति। हमें व्हाट्सएप के थ्रू जितना भी हमारी ओल्डर जनरेशन है उसको जरूर जोड़ना चाहिए, और मेरे हिसाब से इसमें उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखिए आजकल ज़माना तो टेलीमेडिसिन का है। हमने भी अपने CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में टेली ऑप्थेल्मोलॉजी का स्टार्टिंग किया है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जो भी जैसे श्रुति आपने मुझे बताया था कि कुछ लोग जो हैं, बिल्कुल ओल्डर लोग जो हैं, वो फैमिली में अकेले रह रहे हैं घरों में, उनके बच्चे उनके साथ नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि उन लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना, मैं नहीं समझती कि उतना आसान हो पाएगा, और वो लोग इतनी आसानी से अपने सिम्टम्स को डॉक्टर्स से डिस्कस कर पाएंगे। टू सर्टेन एक्सटेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना फायदेमंद भी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा ना हो कि इसका जो है कुछ गलत फायदा, कुछ फायदे की जगह कुछ उनको नुकसान हो जाए। क्योंकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने में आपको जूम के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा डॉक्टर से अपनी बात कहने के लिए, है ना? तो बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा। तो मुझे बस थोड़ा सा, जब से आपका क्वेश्चन आया है तब से मैं ये सोच रही हूँ कि सर्टेन एक्सटेंट तक तो ये फायदेमंद है, लेकिन आपका फर्स्ट एड हो सकता है इससे। जो शुरू की इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन लेटर और सूनर तो आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। या आई एग्री मैम, आई एग्री। तो इस बात को हम जरूर पॉइंट पे रखेंगे। और अभी मैंने सुना है कि आज मैं पेपर पढ़ रही थी, मुरादाबाद का हिंदुस्तान पेपर है, तो उसमें कई डॉक्टर्स ने निकाला भी है। एक होम्योपैथिक डॉक्टर है डॉक्टर राघव, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर कुलदीप शर्मा, उन लोगों ने अपने नंबर्स भी दिए हैं उसमें, और अपना कांटेक्ट का टाइम भी, परामर्श समय। डॉक्टर राघव जो है वो 12 से 2 कांटेक्ट करेंगे। आप उनसे फोन पे जो है अपनी प्रॉब्लम्स बता के अपनी मेडिसिन ले सकते हैं, और जो डॉक्टर कुलदीप हैं वो 1 से 2 करेंगे। तो इस तरीके से मैं समझती हूँ कि शहर के डॉक्टर्स के द्वारा भी ये पहल की जा रही है, और सरकार भी इसमें बहुत सोच रही है। हमारा मुरादाबाद का एडमिनिस्ट्रेशन भी लगा हुआ है, हम लोग भी लगे हुए हैं, बराबर काम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो होगा और लोगों को हेल्प मिलेगी। और वो नंबर्स मेरे पास हैं, हम जो बाद में व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाएंगे तो उसमें मैं डॉक्टर्स के नंबर भी उसमें व्हाट्सएप कर दूंगी। और मैं आप लोग को ये अश्योर कराना चाहती हूँ, बीइंग अ CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट हमारा है, तो उसमें अगर किसी भी मेरे ओल्डर सिटीजन को या सीनियर सिटीजन को कोई आई की प्रॉब्लम है, तो उसकी फर्स्ट एड जो है वो हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी टेली ऑप्थेल्मोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो अगर उनको कोई भी इनिशियली स्टेज पे प्रॉब्लम है या वो नहीं आ सकते हैं, कोविड की वजह से उनको ज्यादा डर है घर से निकलने का, तो उनको हम आई के क्षेत्र में तो जरूर उनकी हम मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शिखा। मैं कहना चाहूंगी, जो भी जिस भी सीनियर सिटीजन्स को जरा भी प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर वहाँ है, तो मैं उनके लिए पूरी कोशिश करूंगी कि उनको घर बैठे जो बेस्ट हेल्प हो सकती हो वो कर सके। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप PPE किट और फेस मास्क का भी जी जी जी, तो क्या वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में? जी, मार्केट में नहीं, मैं ऑन ऑर्डर काम कर रही हूँ,
और Okay. ये ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, मेरे साथ प्रोजेक्ट इसने में जितनी भी लेडीज जुड़ी हुई थी, किसी को भी एक दिन भी घर पे खाली नहीं बैठना पड़ा। मैं इस पीरियड में 30,000 मास्क बनवा चुकी हूँ उनसे, और कंटिन्यू ऑर्डर में है, डिस्पोजेबल भी है। मैं बहुत वैरायटी के बना रही हूँ, हैंडलूम कॉटन के भी बना रही हूँ, डबल लाइनिंग बना रही हूँ, ट्रिपल लेयर भी बना रही हूँ, डिजाइनर मास्क भी मैंने अब बनानी शुरू कर दी है। जैसे अब आगे आपको लग रहा है कि 2 साल तक कोविड जो है, आपको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, तो ये इसकी डिमांड रहेगी। मेरे साथ तो जितनी भी महिलाएं जुड़ी थी पचोकरा गांव की, नजराना गांव की, सबको मैं काम दे पा रही हूँ और सबको मैं बिजी रखी हूँ। मुझे ये आज बताते हुए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं ऐसा कर पाने में समर्थ हूँ। और दूसरा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज आपको ये शेयर करते हुए कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से आज तक, इस महीने के आखिर तक, मैं कम्युनिटी किचन भी चला रही हूँ और 250 लंच और 250 डिनर डेली मेरे, कभी कलेक्ट्रेट में, जहाँ पे भी जरूरत होती है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कहता है, मैं बराबर दे रही हूँ। बहुत सी जगह मैंने राशन के फूड पैकेट्स भी, जैसे जैसे गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आती है। एक्चुअली देखिए, कोविड में अपने आप को निकलना मना है, तो मैंने तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का आता है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके कर रही हूँ। तो ये समय है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, और मेरी भी यही कोशिश है। और मैं आप सबसे भी यही कहूंगी कि अपने घर बैठ के हम जो अपने समय को बेहतर यूज कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। इनक्रेडिबल मैम, इनक्रेडिबल। आपको सही में मैंने नाम दे दिया, मॉम ऑफ मुरादाबाद। नहीं नहीं आई थिंक आप इसके हकदार हो। अच्छा, अपिन राव, राइट नाउ ओवर टू स्तुति। तृप्ति मैम हमारे साथ हैं, प्लीज इंट्रोड्यूस तृप्ति मैम। Hello everyone, my name is Stuti Agarwal and I'm the founder of UttarPradeshLife.com, which is a social media channel on Facebook, Instagram and YouTube. Also, I'm the founder of Booker's Avenue, which is a food blog on Instagram. And I'm the influencer of Women Who It Up. And today I welcome you all in today's seminar. Thank you so much for joining us. And we have with us Mrs. Tripti Singhal Somani, who is the founder of Women Who It Up, and she is the CA by profession, but besides that she is involved in various social activities and startup culture. She is also a TEDx speaker and former CEO chairperson startup at PhD Chamber of Commerce. She is very inspiring and motivational woman, and besides that she is helping other women to raise their businesses by giving them a platform like Women Who It Up. Thank you so much, Tripti ma'am. Thank you so much. It's great to see Shruti, Stuti and Ririma to bringing such a great platform together with support Theory. Shikha ma'am is here. And I'm sure after we met in Muradabad for the WH, now we can do very focused initiative to support each other and take things forward. Good to see Amit as well. And Ankit ji. Yeah, Ankit, yeah. Thank you so much. Now I would like to give a small introduction about Dr. Babita Gupta. मुरादाबाद की जानी मानी हस्ती और एक बहुत अच्छी इंसान डॉक्टर बबीता गुप्ता. She is a gynecologist, MBBS, PGDPC, family counselor and founder of Beautiful Ladies Club Muradabad. She also has a YouTube channel called Traveling Indian Family, where she uploads video about her family trips. So Dr. Babita Gupta, she's a very kind lady and she's very active in her social life and also on social media. So ma'am, a very warm welcome to you in today's evening. Hello. Hello. Your voice is not coming. Maybe you will have to readjust your mic. Yes, now we can hear you. Yeah, please. No, we can't hear you. Stuti, I think she needs to disconnect and join again. Maybe you can start on with others. Yeah. Okay. So can we take another guest right now?
Hello. Please take the next guest, please. Okay. So we have another guest, Mrs. Garima ji. So Mrs. Garima ji, she believes in busy life is easy life. And जैसे कि आप सब जानते हैं गरिमा जी को, ये इतना काम करती हैं, इतनी बिजी रहती हैं कि कई बार खुद ही भूल जाती हैं कि इनके क्या क्या अचीवमेंट्स रह चुके हैं. तो आज मैं आपको बताती हूँ इनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में. She is the administrator in CL Gupta Eye Institute, and she is the influencer of Womenovata in Moradabad. Also, she is the founder of Parag Human Foundation. She also organizes various events in Moradabad, and also she is known as an anchor. The only motive of her life is to support other women in any way she can, and she works under she is working for many projects under NGO Project SNEH. ये था इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, बट इसके अलावा भी वो बहुत से कामों में इन्वॉल्व रहती हैं जिसे मैं यहाँ कुछ शब्दों में नहीं बता सकती. गरिमा जी, आपका स्वागत है आज की इस इवनिंग में. Thank you, Stuti. And it is all the grace of Ramsey and my two moms, Shikha ma'am and Anshu Singh. उन दोनों की इंस्पिरेशन के कॉम्बिनेशन से मैं इतना सब कर पाती हूँ. And really thankful कि मेरे साथ तृप्ति जी, प्रिया जी, अल्पना जी, शिखा मैम, ऐसे सारे लोग जुड़े हुए हैं कि अगर मेरा मोटिवेशन कहीं भी डाउन भी होता है तो इन सब लोगों को मैं देख करके वापस रिचार्ज हो जाती हूँ कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. And during this lockdown period, through CL Gupta Eye Institute, I really got this privilege कि हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं. जैसा कि already शिखा मैम ने बताया कि through medical eye care हम लोगों को services दे रहे हैं, चाहे वो emergency services हो या other kind of medical facility हो, जहाँ तक भी हम उनकी मदद कर सकते हैं. A part of it, through our community kitchen, we are daily serving to the daily wages workers. और जब हम ये सब सर्विसेज करने के लिए उन तक जाते हैं, स्पेशली मैम का जो प्रोजेक्ट स्नेह का मास्क का प्रोजेक्ट है, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था अराउंड 20th of March से हम लोग इस पे काम करना स्टार्ट किए थे. और सडनली ऐसी सिचुएशन आई कि जितनी भी लेडीज हैं उनके हस्बैंड सब डेली वेजेस वर्कर्स थे, तो जो घर चलाने का जिम्मा पुरुष के हाथ में होता है, जब वो पुरुष घर पे आके बैठ जाता है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उस फैमिली की सर्वाइवल कैसे होती है. वो दिन से लेके आज तक का दिन है कि उनकी वाइफ्स अपने आप को इस लेवल तक लेकर के आई कि वो अपने घर का पूरा खर्चा उठा पा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट्स से. वो लोग मास्क बना रही हैं, हेल्थ हाइजीन पर काम कर रही हैं. ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ में सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट के थ्रू हम सर्व कर पा रहे हैं. पार्ट ऑफ इट सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और गांव के आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ पे पुअर और अंडर प्रिविलेज लोगों को हाइजीन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. ये प्रोजेक्ट हमारा आज ही खत्म हुआ है, जिसमें हमने अराउंड 675 किट्स अब तक हमने गांव के लोगों को दी हैं, जिसमें उनको हैंड वॉश, लिक्विड हैंड वॉश, हाइपोक्लोराइड और इस तरीके की डिसइंफेक्ट करने वाली चीजें दी हैं ताकि वो अपने आप को और अपने घर को इन्फेक्शन से दूर रख सकें. क्योंकि कोविड की ये लड़ाई हम लोग लॉकडाउन में घर बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि हम सबके पास शायद थोड़ा बहुत बैकअप है आने वाले 4-5 महीने तक के लिए. लेकिन वो लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए इस वक्त अपनी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो उनको लॉकडाउन समझ में नहीं आता, उनको कुछ समझ में नहीं आता. उनको एक बात समझ में आती है, बस कहीं से मौका मिल जाए मैं घर से निकल के कुछ कमा के ले आऊं. सो ऐसी सिचुएशन में शिखा गुप्ता मैम जैसे एनजीओस, क्योंकि मैं मुरादाबाद प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ, वुमेनोवेटर के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का सामने आना और उन लोगों के हाथ से हाथ मिला के उनको ये गारंटी देना या ये सिक्योरिटी देना कि हम लोग उनके साथ इस टफ टाइम में खड़े हैं, ये बहुत बड़ा कदम है. एंड आई बिलीव कि हम सब इसके लिए पूरी तरह तत्पर भी हैं. थैंक यू. सो गरिमा जी, आपने जो भी बताया ये बहुत इंस्पायरिंग था, एंड आई होप सब भी इस कठिन समय में इसी तरीके से काम करें, एक दूसरे की मदद करते हुए. आपको एक क्वेश्चन फ्रॉम यू गरिमा जी. लॉकडाउन के टाइम में आपने बहुत सारे लोगों की मदद करी, उन्हें फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए. सो मैं जानना चाहती हूँ कि किस टाइप के चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं इस टाइम पे. आप लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो हम आम जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं बट वो लोग फेस कर रहे हैं, जो क्योंकि आपने पर्सनली सबको फूड डिस्ट्रीब्यूट किया तो आप उससे ज्यादा अच्छे से समझ सकती हैं और हमें समझा भी सकती हैं. अगर हम बात करें फूड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मुरादाबाद के जितने भी प्रेस्टिजियस मेंबर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सबके पास में ये डेली सबके यहाँ से फूड पैकेट्स बन के जा रहे हैं.
अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो पहला चैलेंज ये है लोगों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में लोग निकल नहीं पा रहे थे। इसमें दोनों तरह की प्रॉब्लम्स आई। कुछ परिवार ऐसे थे जिसमें हस्बैंड एक एरिया में गया फूड पैकेट लेने, वाइफ एक एरिया में गई फूड पैकेट लेने के लिए, बच्चों को उन्होंने अलग एरिया में भेजा। तो कोई कोई फैमिली ने तो 4-4 5-5 जगहों से फूड पैकेट्स कलेक्ट कर लिए। तो जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट वाले लोग थे या नीडी थे या जो नहीं पहुंच पा रहे थे, वो लोग उस चीज से वंचित रह गए। दूसरा पार्ट इसका ये भी रहा कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जो मतलब बाहर से यहाँ पर आकर के काम कर रहे थे। वो लोग रेंट पर रह रहे थे या जो भी झोपड़ी में रहते थे, और उनके लैंडलॉर्ड्स वगैरह ने उनको मना कर दिया। तो ऐसे लोग लिटरली सड़कों पर या शेल्टर होम्स में चले गए, और उन लोगों को फिर ये फूड पैकेट्स के माध्यम से ही खाना मिला, बिकॉज दे डोंट हैव एनी किचन और कुछ भी उनके पास व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरीके के फूड पैकेट्स जो समाज में एनजीओस के माध्यम से या हमारे मुरादाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से बटे हैं, उससे बहुत सारे करीब 20 से 25 हजार लोगों का भला हुआ है। जो चैलेंजेस की बात अगर हम ये करें कम्युनिटी किचन चलाने के लिए, तो हाँ इतना जरूर है कि इस समय पे जब सब लोग अपने घर की तरफ चले गए और ये आदेश हो गया कि लेबर लोगों से काम नहीं कराना है, घर की काम वाली भी काम करने नहीं आ रही है, ऐसे में कैंटीन के स्टाफ को रोकना, उनका पूरा हाइजीन का ध्यान रखना, किचन को डेली सैनिटाइज कराना और पूरे हैंड और हेल्थ के हाइजीन लेवल को मेंटेन करने के लिए जो अरेंजमेंट्स हमको करने पड़े वो थोड़े से टफ थे। लेकिन स्टार्टिंग में वो थोड़ा टफ भी लग रहा था। बार बार हमारे पास इंस्पेक्शन हो रहे थे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कॉल आना, वीडियो पे ये दिखाना कि लोग कैसे बना रहे हैं, उन्होंने सैनिटाइजेशन किया है नहीं किया है, सारा कुछ उन्होंने पीपीई किट पहनी है नहीं पहनी है, बार बार जाके अपने कुक्स को चेक करना। ये सारी चीजें शिखा मैम और हमारा जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, कंटिन्यू हम वीडियो कॉल पे उन लोगों को कभी भी चेक करते थे कि वेदर दे आर रियली फॉलोइंग दी सैनिटाइजेशन स्टैंडर्ड्स और सोशल डिस्टेंसिंग स्टैंडर्ड्स और नॉट। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन ये चैलेंजेस बहुत स्टार्टिंग में थे, पर जब इसका क्रक्स निकल के आता है या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमारी वजह से बहुत सारे लोगों का पेट भर रहा है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स और ये चैलेंजेस नजर नहीं आते। That's it. एक ऐसा मैसेज जो आप लोगों को देना चाहेंगी जो लोग भी फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि और क्या सावधानी के साथ वो काम कर सकते हैं? मैं एक मैसेज जरूर सबको देना चाहूंगी। जो हम जब हमारी गाड़ी वहां पर जाती है खाना देने के लिए, तो लोगों को ये पता होता है कि जहां से फूड आ रहा है, किसके यहाँ से कैसा फूड आ रहा है, तो वो फूड की क्वालिटी के अकॉर्डिंग लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि नहीं हम वो वाली गाड़ी आएगी तो उससे फूड पैकेट लेके। तो मैं हर व्यक्ति से ये बोलना चाहूंगी कि जो लोग भी आज के टाइम में फूड पैकेट सप्लाई कर रहे हैं, वो शिखा मैम एक बात कहती हैं कि वही बात मैं आज रिपीट कर रही हूँ कि जैसा खाना मैं खाना चाहती हूँ या मैं खा सकती हूँ, वैसा ही खाना मुझे दूसरों को खिलाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो इट्स बेटर टू स्टॉप। तो जो लोग भी फूड सप्लाई कर रहे हैं, प्लीज वो ये ना सोचे कि हमें ये खाना बस लोगों के पेट भरने के लिए बनाना है। उनको उसमें स्वाद भी आए, वो सफाई से भी बना हो और उनको अच्छा भी लगे, उनको खा के तृप्ति मिले, ऐसा सोच के साथ में खाने के फूड के पैकेट्स डिलीवर करें। थैंक यू सो मच गरिमा जी, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी। स्तुति ने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं पराग ह्यूमन फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारी चीजें कर रही हूँ। तो कम्युनिटी को खुश करने का काम हमारे फाउंडर्स कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी मेरी फ्रेंड्स और लेडीज जो घर में बोर हो गई थी, इवन हमारा हॉस्पिटल भी 15 डेज के लिए पूरा स्टाफ क्वारंटाइन में चला गया था, तो एक कमरे में अपने आप को आइसोलेट करने का जो तकलीफ है, वो एक वर्किंग वुमेन से ज्यादा बोलने वाली लेडीज तो बहुत बेहतर समझ सकती हैं। तो ऐसे उसको बोर्डम को तोड़ने के लिए what I did, I have started some online competition for Muradabad kids and Muradabad ladies, जिसके अंदर हमने कुकिंग कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, डांस कंपटीशन, ये सब कुछ हमने ऑनलाइन किया है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि जब हमने इसे सोचा था, तब सोचा था सिर्फ 20-50 फ्रेंड्स के लिए, लेकिन we got inquiries from all over India and more than 250 videos we have received in each competition. और by grace of God and with the best of love wishes of yours कि हमको बहुत सारी एंट्रीज मिली, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और एक छोटा सा ग्रुप जो व्हाट्सएप पे केवल 2 नंबर से शुरू हुआ था, वो 1 महीने के अंदर 450 लोगों का हो गया है। एंड एवरीबॉडी इज कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गरिमा जी। नाउ आई हैंड ओवर टू श्रुति दुआ जी। ओके, अभी मैं इनका क्या इंट्रोडक्शन दूं। शी इज नोन बाय एवरीवन इन मुरादाबाद। She is president of Save Girls Trust and socially very active in Facebook. And who is she? I think everybody knows Priya Agarwal ji.
Hello, Priya Agarwal ji, are you there? Hello. Hello, Yeah. Hello, Priya ji. How are you? I'm fine, Shruti. What about you? All good. Okay, प्रिया जी, आपका तो कोई इंट्रोडक्शन मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत छोटी रह जाऊंगी आपका इंट्रोडक्शन देने में, सभी आपको जानते हैं यहाँ पर। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जैसे आप सोशली बहुत एक्टिव हैं, तो जो सीनियर्स जो जिनका हम सोच रहे हैं कि हम कुछ सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप बनाएं, तो जो आप फेसबुक पे इतनी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराते हैं, आई थिंक गरिमा शी इज आल्सो डूइंग विद यू, सो जो आप ऑर्गेनाइज कराते हैं इतने एक्टिविटीज, तो क्या हम उनके लिए भी कुछ टाइम पास या कुछ उनका इंजॉयमेंट के लिए कुछ हम उस ग्रुप में एक्टिविटीज आप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं वुमेन यूनिवेटर तृप्ति जैन जी का, श्रुति दुआ आपका और आदरणीय शिखान जी का, मुझे दिख रही आदरणीय भाभी अर्पना भाभी का, गरिमा का और आए हुए सभी लोगों का हार्दिक आभार, अभिनंदन व वंदन करती हूँ। जो क्वेश्चन अभी आपने मुझे सबकी बातें सुनी और दिया, क्योंकि अब ऑनलाइन इज फ्यूचर नाउ, और जिस तरीके से अभी हमें 2-3 इयर्स रहना है इसके साथ, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी चीजों में ही बदलाव लाना है और सबसे ज्यादा इफेक्ट अपने बड़े लोगों को, हम बड़े लोगों को अपने साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप अभी शिखान जी ने बताया, जो मेरी थिंकिंग है, इस तरीके की एक्टिविटीज अगर हम बड़े लोगों को ऑनलाइन करके करेंगे तो एक तो हम उनको इजीली अपने साथ जोड़ पाएंगे। उसमें 3-4 ऑनलाइन क्लासेस मैंने प्लान भी की है, जैसे हम मॉम्स मदर इन लॉज की कोई भजन किटी, कोई रामायण के क्वेश्चंस या कुकिंग क्लासेस जैसे दादी माँ के नुस्खे, और किटी वेब में हम उन लोगों को बड़े लोगों को जोड़कर कि अपने, जैसे आज हम लोग सब यंगस्टर्स बैठे हैं, वो अपने शेयर करें एक्सपीरियंसेस, तो इस तरीके की अलग अलग क्लासेस प्लान कर सकते हैं। इससे एक तो उनको अच्छा भी लगेगा, और जो एक इनसिक्योरिटी है कोविड को लेकर 15-20 डेज में जिस तरीके से वेबिनार्स, जिस तरीके से जूम में एक्टिविटी शुरू हुई है, तो नो डाउट सबके माइंड में ये कोविड निकला भी है और फैमिली में भी ना एक अच्छा भूमिका आया है। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी एक्टिविटीज अपने बड़े लोगों को समझाने के लिए, संभालने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी आगे आने वाली एक्टिविटीज में मदर इन लॉज को स्पेशली लेकर कुछ मैंने प्लान भी किया है। रिगार्डिंग सोसाइटी सब चीजें चल ही रही हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे कम्युनिटी किचन वगैरह हो, सब चीजें हैं। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरीके की एक्टिविटीज हम सब लोग कोऑपरेट करके करेंगे तो आगे एक नया भूमिका मिल पाएगा। थैंक यू प्रिया जी, ये आपने बहुत ही एक अच्छा सुझाव रखा कि दादी के नुस्खे, रामायण और ये सब आई थिंक उन लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा और वो इसमें इन्वॉल्व भी हो जाएंगे। अच्छा, सेकेंडली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो अभी लॉकर रूम्स, आई थिंक बच्चों से रिलेटेड ये बात है कि जो भी हम लॉकर रूम का बॉयज़ का ये हम सुन रहे हैं इंस्टा पे, तो क्या आपको लगता है कि हम लोगों को कैसे उनको साइकोलॉजिकली बच्चों को समझाना चाहिए, और आप क्या नॉलेज दे सकते हैं कि हम हाउ टू कीप एन आई ऑन देम, यू नो? श्रुति, जिस तरीके से ऑनलाइन चीजें बढ़ी हैं पिछले 2-3 इयर्स में, और अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी बिल्कुल रिगार्डिंग बच्चों की स्टडीज के रिगार्डिंग शुरू हो गई हैं, तो नो डाउट कि बच्चे पूरे दिन लैपटॉप पर, कंप्यूटर्स पे बैठे हुए हैं, तो चीजें मुझे लगता है कि वो अपने घर से शुरुआत होती है। अगर बच्चों की हर पर ध्यान दें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें बच्चों से ना एक फ्रेंडली रिलेशन रखना पड़ेगा, कि जो भी है एक फ्रेंडशिप करके एक बॉन्डिंग बनेगी, तो मुझे लगता है कि बच्चे सारी एक्सपीरियंस आपसे शेयर भी करेंगे और अपनी भी बातें आपको बता पाएंगे। और ये लॉकर्स रूम वाली जो एक्टिविटी है वो एक भाई सोसाइटी के लिए एक बहुत खराब चीज तो है ही, और ऑनलाइन जिस तरीके से है, हमें लगता है कि अपने बच्चों पर बार बार हम लोगों को ऑनलाइन चेक भी करते रहना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, किस समय देख रहे हैं, क्या चीजें रिगार्डिंग क्वेश्चन भी हर समय देगा, उनसे पुटअप करते रहने चाहिए। और वही संस्कार हमेशा अपने घर से आते हैं। और मुझे लगता है जब हम बच्चों को इतना टाइम, क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोग अपने बच्चों के साथ हैं, तो दे नोज कि व्हाट आर दे थिंकिंग। अगर सडन चेंजेस उनके बिहेवियर में लगता है तो हमें एकदम से उस पर ध्यान भी देना चाहिए कि नहीं भाई ये चीजें कहाँ से आ रही हैं, कौन सिखा रहा है या क्या चीज है। और समय समय पर अपने ये लैपटॉप, समय समय पर अपने फोन पेरेंट्स को चेक भी करते रहने चाहिए कि बच्चा कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है।
और ये सब चीजें करेंगे तो नो डाउट हम ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी जो ये लॉकर्स रूम में चीजों से बच पाएंगे। Thank you so much, Priya ji, for your guidance. Now I think over to Stuti. मेरा इंट्रोडक्शन हो गया था बबीता मैम से, बट अब मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूंगी अपना। मैम, डॉक्टर बबीता गुप्ता, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो? I think she still has a mic issue. We can't hear you, Dr. Babita. She was... Yes, now we can hear you. Great. Okay. Yeah. So my question to you, ma'am, इतने टाइम तक लोग अपने घर में बंद हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, तो और अभी कुछ नहीं पता कि हमें कितने टाइम तक और अभी घर में रहना है। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारी कुछ हैबिट्स और साइकोलॉजिकली हमारा माइंड काफी हद तक चेंज हो चुका है। बट अब जब ये लॉकडाउन खुलेगा और हमें फिर से बैक टू दैट शेड्यूल हमें जाना होगा, तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके होंगे। सो वो चेंजेस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंसान में किस टाइप के साइकोलॉजिकल चेंजेस देखे जाएंगे और उनसे क्या चैलेंजेस हमें आ सकते हैं। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। आई थिंक आप ईयरफोन्स हटा के बात कर सकती हैं, अभी आवाज नहीं आ रही है। Am I audible now? Yes, yes. Thank you, Women Innovator team, for inviting me for this topic. Quarantine या lockdown का जो time है, really is very difficult time for all of us. इसके बाद post quarantine बहुत सारी psychological problem definitely is going to happen. क्यों होने वाली है? क्योंकि सबसे पहले तो जो स्टिग्मा है, जिसको भी कोविड-19 हुआ है या वो किसी भी कोविड-19 पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया है तो उसको क्वारंटीन किया गया। तो स्टिग्मा इज वेरी वेरी बैड एस्पेक्ट ऑफ दिस। क्योंकि आज ही का मैं आपको बता रही हूँ कि आज एक बच्ची जिसके पिता जो हैं और भाई कोविड पॉजिटिव हैं, उसकी आज मैंने दास्तान सुनी तो आई कुड नो कि समाज में क्या हो रहा है, कि किस तरीके से उनको अलग कर दिया गया है या उनसे रिलेटेड लोगों को जो क्वारंटाइन है तो आज हमने राशन वगैरह पहुंचाया है। उस तरीके से हम लोग बहुत लोगों की मदद कर चुके हैं। लेकिन जो स्टिग्मा है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैक्सिमम करेक्ट मटेरियल होना चाहिए जो हम उन तक स्प्रेड करें। क्योंकि व्हाट्सएप पे जो न्यूज़ आती है या जो भी व्हाट्सएप पर डिटेल बताई जाती है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये बिल्कुल सही हो। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, न्यूज़ चैनल्स का, मीडिया का ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो इस चीज़ को देखें कि एक इंफॉर्मेशन सबको मिले। और आरोग्य सेतु ऐप आई थिंक सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, और नहीं किया तो कहें, वहाँ से भी आपको बहुत पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट क्वारंटीन प्रॉब्लम आएगी, वो है फाइनेंशियल लॉसेस। फाइनेंशियल लॉसेस में जैसा कि पहले भी बात हुई है, जो डेली बेसिस के लोग हैं उनके सामने तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अलावा और भी लोगों को बहुत सारी जिनके बिजनेसेस हैं, माइक्रो मैक्रो इंडस्ट्रीज हैं, उनके सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि पोस्ट क्वारंटीन, ड्यूरिंग क्वारंटीन जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ग्रोसरीज, राशन एंड मेडिसिन। आज पेशेंट्स जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए इतना बड़ा प्राइवेट सेक्टर था जो इस वक्त बंद है, गवर्नमेंट सेक्टर उस लोड को उठा नहीं सकता। तो मेडिसिन की वजह से बहुत लोग परेशान हैं, और स्पेशली जो क्रॉनिक इलनेस के शिकार हैं, जैसे डायबिटीज, जैसे हाइपरटेंशन, जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स। आज की जो स्थिति वो ये है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है, फियर है, फोबिया है, बोर्डम है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको बहुत सारे लोग कैसे डील करें उन्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है।
इन सारी फ्रस्ट्रेशन और बोर्डम को दूर करने के लिए अनडाउटेडली सोशल मीडिया इज वन ऑफ द आंसर, बट सोशल मीडिया उस ग्रुप से जुड़े, ये मेरा सजेशन है आप सभी लोगों को, कि जो पॉजिटिविटी क्रिएट करता हूँ। बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में बहुत सारी निगेटिविटी चलती है, ये मत करो, ये मत खाओ, ऐसा मत करना, उससे एक डर, फोबिया पैदा होता है। एक मेरा यूट्यूब चैनल, जैसा कि श्रुति ने बताया, उसमें मैंने लिखा है, कोरोना से डरे नहीं, मर मर के जिए नहीं, क्योंकि कोरोना तो एक ही बार आएगा, बट मर मर के डेली यू आर डाइंग, यू नो। इसमें एक प्रॉब्लम ये है, जो ऑलरेडी दोस्त पर्सन्स हु आर मेंटली अनस्टेबल, या कहना चाहिए कि मेंटली थोड़े से वीक हैं, उन लोगों में इस समय प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। एक्यूट, दो तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। जिन्हें ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को, एक्सक्यूज मी, जिन्हें क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं वो, उनकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई हैं। लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गए। इवन जो ऑफिसर्स हैं उनके भी बहुत सारे, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके भी फोन आ रहे हैं कि उन्हें नींद नहीं आ रही, बहुत ज्यादा फियर है। ड्यूटी तो कर रहे हैं, बट दे कैन सफर फ्रॉम कोरोना ऑल्सो। तो इस तरीके से बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो रोल है, एक से तो एग्जॉस्ट चला है, उसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हम लोगों को सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जो क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशन है विद इन द फैमिली, भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि एक डर क्वारंटीन, एक डर कोरोना पॉजिटिव होने का है, एक डर कोरोना वॉरियर बनकर लोगों के साथ काम करने का है। तो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, और ऐसे में हम अगर लोगों की मदद करते हैं, पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे मीनिंगफुल, जैसे कि गरिमा ने बताया कि मीनिंगफुल हमें एक्टिविटी शेड्यूलिंग करनी होगी लोगों के लिए, so that whenever they get negative, they get something positive out of all the negatives. So there are many things which we can do. और ऐसे में इस तरीके की जो सोशल मीडिया में जो हमारी जूम मीटिंग्स हो रही हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे हम लोग भी, जैसे बताया कि हम लोग, मैं फाउंडर हूँ ब्यूटीफुल लेडीज क्लब की, मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर की एसोसिएशन की। मैंने कल परसों ही कोविड-19 ट्रेनिंग, मास्टर ट्रेनिंग कोर्स किया है, so that I can train more doctors about how to protect yourself, how to protect the public also. तो इसमें जो important चीज है वो ये है कि हम किस तरीके का पॉजिटिव मैसेज लोगों को दे पाते हैं। I'm sorry. I think बबीता जी आप पानी ले लीजिए पहले। मैंने अपनी Babita ji, I'll just request Natasha to please keep her mic on mute because there's a lot of, just to avoid. Natasha, can you mute yourself? It is mute. Yeah. Okay. तो जो फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम है, आगे आने वाले समय में, इस समय में जो चल रहा है ये तो है ही, लेकिन आगे आने वाले समय में डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, वरीज की प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगी, और तकरीबन 1 साल तक ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए हमें आज से तैयार रहना होगा। देखिए, जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, जो ग्रुप आज यहाँ पर मौजूद है, उस ग्रुप में हो सकता है ये सारी चीजें इतनी ना हो। दे आर वेल ऑफ, दे आर दे आर इन्वॉल्व इन सम और द अदर थिंग। लेकिन अगर हम बहुत सारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दो वी आर ट्राइंग हार्ड कि हम उन तक राशन पानी सब पहुंचा रहे हैं, जैसे शिखा जी ने कहा और बाकी लोगों ने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर वेरी मच वरीज। तो इस समय
बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होने की जरूरत है और एक दूसरे को सपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देखिए, जो मैं आपने सोशल मीडिया ग्रुप्स की आप बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, बट उस ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिविटी में बदल सके, तब तो उस ग्रुप का फायदा है। लेकिन हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो नेगेटिव चीजों को जल्दी कैच करता है, पॉजिटिव को बाद में, एक रिसेंटमेंट होता है। तो हमें, अगर हम इस तरीके के ग्रुप्स बनाते हैं तो हमें ये खास तौर पे ध्यान देना होगा। बहुत सारे लोगों को अपने आप को नेचर से जोड़ना होगा, जस्ट टू बी अवे फ्रॉम ऑल द फ्रस्ट्रेशन एंड बोर्डम। हमें अपने आप बहुत सारे न्यू आइडियाज, इनोवेटिव, जैसे श्रुति दुआ, आप इनोवेटिव हैं, आई थिंक आप इनोवेटिव हैं, तो आप बहुत व्यस्त होंगी, आपको नहीं लग रहा होगा बोर्डम। लेकिन हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं होता ना, हमारे जैसे जो यहाँ प्रोफेशनल लोग हैं, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। उन लोगों को सपोर्ट करना हम लोगों की जिम्मेदारी होगी कि हम लोग उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, मेंटली भी सपोर्ट करें, और उनकी हर प्रॉब्लम में देखिए, एक आश्वासन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब डॉक्टर, हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम कहते हैं कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट, जो हम काउंसिल करते हैं पेशेंट को कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन आश्वासन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय जो स्थिति है, अगर उसमें हम एक पॉजिटिविटी आश्वासन के रूप में देते हैं ना, हम सब लोग, जो भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक दैट वुड हेल्प द पीपल ऑफ मुरादाबाद और इंडिया, कि भाई उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो आई थिंक कि जिस तरीके से मैं अपने ब्यूटीफुल लेडीज क्लब के बारे में बता रही थी, क्योंकि ये क्लब सिर्फ डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की वाइफ का है, उसमें वाइफ्स हैं डॉक्टर्स की सिर्फ। तो हम लोग भी बोर्डम सबको हो रहा है, तो वी हैव प्लान वीकली वन एक्टिविटी, कि हम एक एक्टिविटी कराते हैं, सम फन, सम गेम। No, we are not talking about COVID-19 because they are highly educated persons. They know, they are reading, they know more about the corona. Their husbands are doctors, they themselves are doctors, so they know everything. So we just plan weekly one activity, just full of fun. Everybody enjoy. और 1-1.25 घंटे की एक्टिविटी रहती है, जिसमें हर व्यक्ति इतना एंजॉय करता है कि बाद में वो नेक्स्ट वीक का वो वेट कर रहा है कि भाई अब जल्दी से संडे आएगा, फिर आप लोग एक एक्टिविटी कराएंगे। तो दिस काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि सेवा भारती की, चूंकि मैं महानगर अध्यक्ष हूँ, तो जितने भी करीब 250 परिवारों को हमने उनके घर तक राशन पहुंचाया है, डोर स्टेप तक उनके राशन पहुंचा है, कहीं हमने ऐसे डिलीवर नहीं कराया। साथ में जैसे मैंने बताया, IMA का कल एक वेबिनार है, जिसमें हम तकरीबन 70-75 डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देंगे। तो ऐसे कि 1 वीक तक हमारी ये ट्रेनिंग जूम पर ही चलेगी। तो इस तरीके से नो डाउट वी आर बिजी विद आवर पॉजिटिविटी, बट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन इज टू मेक अदर्स पॉजिटिव ऑल्सो। सो क्वारंटीन में मोबाइल, सोशल मीडिया, internet is one of the tool, a very important tool. Apart from this, a healthy diet, healthy diet is important. और एक आयुष मंत्रालय का एक कहना चाहिए काढ़ा, जो हम आयुर्वेद में, even we doctors now believe it, all over world, all the world believe कि जो ये काढ़ा है, it's very very important. तो वो जो काढ़ा है, अभी हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं थ्रू सेवा भारती, हम इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। आप लोग घर पर भी उसको बना सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अपने आप की, जो हमें एज अ डॉक्टर मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है। किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए इम्यूनिटी बूस्टअप करनी है, क्योंकि कोमॉर्बिड कंडीशंस लाइक डायबिटिक्स, दे आर वेरी वेरी प्रोन, लाइक हाइपरटेंसिस, दे आर वेरी वेरी प्रोन। तो ये मेन, या किडनी प्रॉब्लम्स जो डायबिटिक्स को हो जाती है, दे आर वेरी मच प्रोन। और साथ में हमें इस समय ध्यान रखना है प्रेग्नेंट लेडीज का, जो बहुत ज्यादा डरी हुई हैं, कि उनके बच्चे को तो इफेक्ट नहीं हो जाएगा। दैट्स अ पार्ट ऑफ द काउंसलिंग, कि उनको सही करेक्ट इंफॉर्मेशन हो कि भाई उनको या उनके बच्चे को कब नहीं हो सकता और कब हो सकता है। दे शुड नो दी थिंग्स। तो इस तरीके से हम बहुत ज्यादा समाज की मदद कर सकते हैं। और
जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है, उसको अगर हम बनाए रखें इस तरीके से, एक जैसे एक कोविड चेन बना रहा है ना, कि एक को हुआ, उसके संपर्क में जो आया उसको हुआ, ऐसे ही पॉजिटिविटी की एक चेन बनानी है कि जो भी हमारे संपर्क में आए वो पॉजिटिव हो जाए, यू नो, तभी हम कोविड से लड़ सकते हैं। क्योंकि डर जो होता है ना आपको, वो इन्फेक्शन जल्दी लेके आता है। इन्फेक्शियस डिजीज का डर हेल्थ वर्कर्स में बहुत है, यू नो, दो पुलिस वालों में बहुत है, बिकॉज दे आर फ्रंट लाइन वॉरियर्स। तो उनमें उस डर को खत्म करने के लिए हमारा साथ बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनिटी बूस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबके घर में तुलसी होती है, यू नो, एवरीबडी हैज तुलसी इन देयर हाउसेस। आप तुलसी का, जो मैं काढ़े की बात कर रही हूँ, दैट्स होममेड। एक तो एज अ डॉक्टर मैं बताना चाहूंगी कि इस समय कोई ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी पिए। गर्म पानी में जैसे तुलसी के पत्ते हैं, टर्मरिक को हमारा इंडिया की चीज है जो अमेरिकन नहीं खाते, लेकिन अमेरिकन ने उसको पेटेंट कराया है। तो टर्मरिक, दिस दालचीनी, यू नो, दालचीनी पाउडर, साथ में आप सौंठ जो होती है, इसका, अदरक, इन सब का मिला के अगर आप काढ़ा बनाते हो और गर्म पानी, इस काढ़े को डेली आप पीते हो, तो कहते हैं ये जो वायरस है, ये बार बार कहा जा रहा है कि मुंह के थ्रू, आंख, नाक के थ्रू, जो हमारी फेशियल ओपनिंग से उसके थ्रू एंटर करता है। तो अगर बाकी स्पेक्स लगा लिया, कान को आपने कैप वैप लगा के बंद कर लिया, लेकिन अगर किसी भी मास्क जब हम लगाते हैं, कभी बार यहाँ से हमारा वो मास्क से एयर आती है, अगर प्रॉपर नहीं लगा तो उसके थ्रू ड्रॉपलेट जा सकती है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप गर्म पानी पीते रहें, जिससे कि वो वायरस जहां है वहीं मिल जाए, क्योंकि और कोई उपाय तो है नहीं हमारे पास। वी डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट टिल द वैक्सीन कम्स। तो हमें इन सारी चीजों पर भी अपने आप को आई थिंक हमें काम करना चाहिए। So thank you. I'll just interrupt in between. Thank you so much, Dr. Babita. I mean, there were a lot of great insight about what you've shared, and it's very true. I think we have our next speaker lined up. Shruti, would you like to take, or Stuti, anyone quickly, please, because we are running out of time. Yeah. Thank you so much for patient listening, all of you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah. Now thank you, Babita ji, for your so much suggestion, so much for your help. It will definitely हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, and मैं ग्लो वगैरह का भी हम लोग we are taking that काढ़ा also, but definitely we'll add on that on group also. अभी मेरे next जो हैं वो हैं डॉक्टर भास्कर जी, डॉक्टर भास्कर अग्रवाल जी. He is now known as the Yoda warrior. Because he has won the fight from Corona. And I also want, Dr. Bhaskar ji, are you there? Hello? Dr. Bhaskar ji, are you there? Hello? Hello? Yeah, Dr. Bhaskar, welcome to Women Warrior webinar, and it's a pleasure to have you today. And as Shruti shared, it's great to have someone who has actually fought the war already. So it will be really good to hear from you. Thank you. Hello. Hello. We can hear you, Dr. Bhaskar. Thank you, ma'am. मैं सभी जूरी मेंबर्स और जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, सभी को नमस्कार करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसा कि बता दिया मैम ने, वॉरियर तो क्या कहिए कि इस वार को लड़ रहा था जरूर मैं, और क्योंकि मैं पब्लिक हेल्थ के साथ साथ आयुर्वेद योग से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने पब्लिक हेल्थ के कोर्सेज भी किए हुए हैं, और इसलिए मैं पिछले 5 साल से डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ जिला अस्पताल में। और कुष्ठ रोगियों के ट्रीटमेंट के लिए हम प्रयासरत हैं लगातार कि कुष्ठ को हम खत्म कर पाएं, और कुछ हद तक उसमें सफल भी हुए हैं। मेरी ड्यूटी फिलहाल अभी 10 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में IFTM क्वारंटाइन सेंटर पे लगाई गई थी, जहां मैं अपनी ड्यूटी
जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट बाद में आए थे, मतलब उनको एज ए सस्पेक्ट रखा गया था, उनके ड्यूरेशन उनका क्यूरेटाइन का था, तब वहाँ ड्यूटी कर रहा था। उसी ड्यूरेशन में जब 17 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ और 20 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई तो मैं कोविड पॉजिटिव आ गया था। और कोविड पॉजिटिव आने के बाद निश्चित रूप से जो सारी घबराहट की बात, चिंता की बातें अभी सभी गणमान्य जनों ने की हैं, वो मेरे साथ भी थी। जो थोड़ा डिफरेंशिएशन की बात अगर आप कहें फैमिली मेंबर्स के साथ या मेरे साथ, जैसे अभी सोशल मीडिया की ही बात हो रही थी, मैडम ने काफ़ी बताया कि पॉजिटिव अगर मैसेज देने वाला है कोई तो बहुत अच्छा होगा, नेगेटिव मैसेज देने वाला है तो बहुत ख़राब होगा। तो मैंने ऐसा भी एक मैसेज देखा जहां मेरी एक इमेज को टैग कर दिया गया था और उसमें लिख दिया गया था गलती से हुआ था कि जो है ये स्वर्गवासी हो गए और इनका जो है इनके उसकी कामना करता हूँ मैं। तो ये गलती से हुआ था हालांकि, लेकिन अगर इसी मैसेज को मैं नेगेटिवली लेके चलता तो निश्चित मान के चलिए कि मेरे लिए ये समय काटना बहुत मुश्किल होता। मेरी 2 महीने की एक बच्ची है जो भी 2 महीने पहले ये लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले ही हुई है। एक बच्चा 4 साल का है। पिता के साथ मेरे कुछ परेशानी है, विजुअली हैंडीकैप्ड है। तो इस ड्यूरेशन में मेरे को एक सबसे बड़ी समस्या शुरुआत के 2-3 दिन में ये थी कि अगर मेरा परिवार इस कोविड में पॉजिटिव आ गया तो कैसे पॉसिबल होगा कि कहाँ ये लोग जाएंगे, कहाँ कैसे रहेंगे, क्या होगा। मैं बहुत ही खराब स्थिति में था और ईश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी अपने वेल विशर्स का धन्यवाद करता हूँ कि उनकी प्रेयर काम आई और परिवार के सभी सदस्य नेगेटिव आए। क्योंकि मैं जितने ड्यूरेशन में अपना ड्यूटी कर रहा था उसमें जिस रूम में अभी भी बंद हूँ, क्योंकि मेरा 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, तो अभी जिस रूम में यहाँ में हूँ उसी रूम में तब भी रह रहा था। कोशिश ये कर रहा था कि घर में किसी से भी ना मिलूं, किसी से भी कोई संपर्क ना हो, खाने पीने को छोड़ के इसके अलावा कोई भी संपर्क में किसी से नहीं कर रहा था। तो ईश्वर की एक बहुत बड़ी सकारात्मकता रही कि मेरा घर का कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं आया। जो नेगेटिविटीज थोड़ी आसपास से कुछ समय मिली, वो कुछ समय बाद जब सभी को ये पता चला कि मैं ड्यूटी कर रहा था तो वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदली। और मैं ये कहना चाहूंगा कि शुरुआत के 2 दिन उस क्यूरेटाइन सेंटर में बिताना मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, परेशान था, खासतौर पर अपने घर वालों को लेके। सॉरी। और जब ये रिपोर्ट्स मेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। और जब ये रिपोर्ट्स लोगों की नेगेटिव आई तो मैं ये विश्वास कर पाया कि मैं अब ये जंग जीत जाऊंगा। क्योंकि अपनी स्टडीज के दौरान मैं शांति कुंज में रहा हूँ और मैंने वहां से MSc योग साइंस भी किया है। तो उसके अगले ही दिन से मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आई। मैंने अपना शुरुआत से सुबह के प्रारंभ से ही एक शेड्यूल बना लिया कि मुझे अपनी डे टू डे की सारी एक्टिविटीज जैसे मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में करता हूँ, सुबह उठते ही मुझे अपने सारे वर्क कर लेने हैं नित्य क्रिया के, उसके बाद मुझे अपनी प्रेयर करनी है, मुझे अपना योग प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जैसे जैसे वहाँ क्यूरेटाइन सेंटर पे डाइटरी डिस्ट्रीब्यूशंस और डॉक्टर्स का मीटिंग होना है, वो सब शेड्यूल मेरे पूरी एक दिनचर्या के सब चीज़ों में आ जाए। उसमें मैंने कुछ म्यूजिक्स की भी हेल्प ली, कुछ जो है मेडिटेटिव वर्क्स भी किए, कुछ प्रेयर्स भी की साथ में। जैसे कि अब ये एक वेल प्रूव्ड बात है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण, जो एम्स की स्टडीज इस बात को प्रूव कर चुकी हैं कि मेंटल रिलैक्सेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनका भी मैंने सहारा लिया। और उस सब को करने के बाद ये पॉसिबल हुआ कि बाकी के 12-13 दिन मैं बहुत अच्छे से बिता पाया। बहुत अच्छा ऐसा नहीं कहता कि हाँ मुझे कोई जन्नत मिल गई थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक नियमित दिनचर्या के साथ हम, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में इंडिकेटेड है दिनचर्या ऋतुचर्या की बातें, तो दिनचर्या के साथ अगर हम शुरू से सुबह से अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित वे में शुरू कर सकें तो शायद जो उस 4 दीवारी का भय हमारे बीच में है वो कुछ हद तक कम हो सकता है। साथ ही जैसे कि हम आज ओल्ड एज पीपल्स की बात कर रहे हैं, तो एक और ग्रुप की मैं आपको बात बताऊं। मैंने एक ग्रुप पे एक मैसेज देखा जिसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, हालांकि उस ग्रुप के लोग शायद मुझे नहीं जानते हैं। उसमें लिखा हुआ था दुर्गा मंदिर गली में एक पॉजिटिव आया, गलती से भी उस गली में मत जाना। तो जो हम एक बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें ऐसे सीनियर सिटीजन्स को जोड़ते हैं और ईश्वर ना करे इस कोविड की ड्यूरेशन में कोई ऐसा मैसेज कोई अपने लिए देखे,
तो निश्चित मान के चलिए कि उसका अगर साहस बनता भी होगा तो वो बिगड़ जाएगा। तो निश्चित ये एक बहुत जरूरी बात है जो डॉक्टर बबीता मैम ने भी कहा कि कोई एक ऐसा पर्सन उस ग्रुप में जरूर होना चाहिए कि जो नेगेटिविटी भी अगर कोई दे रहा है तो उसको भी ऐसा पॉजिटिव बना दे कि उसका हर सदस्य अपने को सकारात्मक रख पाए, क्योंकि बिना सकारात्मक रखे आप निश्चित मान के चलें ये जंग जीती नहीं जा सकती, खासतौर पे ओल्ड एज पीपल्स के लिए। और अगर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैम ने काढ़े की बात कही, मैं थोड़ा सा और अगर उसे डिफाइन कर दूं, क्योंकि पिछले 15 सालों से उन सब चीजों से मेरा जुड़ाव रहा है। तो जैसे कि हम इस काढ़े में जो आयुष मंत्रालय ने दिया है, अगर हम गिलोय को और ऐड कर लें, गिलोय एक बहुत अच्छी चीज है, 1.5 इंची की डंडी उसकी ले लें, उसके साथ साथ उसमें जो है अगर हम तुलसी के 5 पत्र ले लें, एक काली मिर्च ले लें, अगर थोड़ा तीखा इस्तेमाल कम करने वाले लोग हैं तो आधी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा दालचीनी ले लें, साथ ही साथ इसमें जो है अदरक या सौंठ जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 ग्राम अदरक की मात्रा रख सकते हैं, और एक हल्दी हम इसमें जोड़ लें। तो ये 2 कप पानी को उबाल के, मतलब 2 कप पानी उसमें डाल देना है, 2 कप पानी को उबाल के वो आधा रह जाए उसको छान के आप इस्तेमाल करें। तो ये एक सबसे बढ़िया रेमेडी जो आयुष मंत्रालय द्वारा दी जा रही है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हो सकती है। साथ ही साथ जैसे च्यवनप्राश का इस्तेमाल है, च्यवनप्राश भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक सबसे बढ़िया चीज है। तो च्यवनप्राश का इस्तेमाल हम 10 ग्राम की मात्रा में, 10 ग्राम का मतलब होता है 2 बड़े चम्मच। जो लोग जो है अगर मान लीजिए ये मानते हैं, क्योंकि इसके साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कब्ज नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसी को कब्ज महसूस होता है तो उसकी मात्रा आधी भी कर सकता है, 5 ग्राम की मात्रा में ले सकता है। और जैसे मान लीजिए कि अगर कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो शुगर फ्री च्यवनप्राश भी, हाइपरटेंसिव नहीं मतलब डायबिटिक है अगर, तो उसके लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश ग्रेन्यूल फॉर्म में अवेलेबल है, उसका भी वो इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ एक अच्छी रेमेडी जिसे हम जो है गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, गोल्डन मिल्क का मतलब यही है कि दूध में हम हल्दी मिला लें। ये भी मैं आपको कहूंगा बहुत से लोग बहुत सारी मात्राएं बता रहे हैं, जैसे 150 ml मिल्क में कहते हैं आधा चम्मच मिला लीजिए, लेकिन ये भी अपनी प्रकृति पे बेस करके है। यदि अगर आप गर्म प्रकृति वाले, कहने का सेंस कि अगर आपको गर्म चीजें ज्यादा माफिक नहीं आती हैं तो आप इसकी मात्रा थोड़ी कम भी रख सकते हैं, और सुबह शाम दोनों टाइम अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो भी हम इस फाइट में काफी हद तक सफल हो सकते हैं। साथ साथ में गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के इसके गरारे किए जाएं। ये भी एक ऐसी रेमेडी है जो बहुत ही आवश्यक है इस समय के दौरान में। इसके साथ साथ जो चीज एक मैंने अपने प्रैक्टिकल इसमें की वो योगा प्रैक्टिस थी, जो हम जैसे कि आज हम ओल्ड एज लोगों के लिए बात कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस के लिए नहीं कहता, लेकिन अगर सक्षम है तो सूर्य नमस्कार एक सबसे बढ़िया प्रैक्टिस हो सकती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप 2 या 3 बार भी, अगर 2 या 3 राउंड भी, राउंड का मतलब ये होता है कि हम 2 बार इस प्रैक्टिस को रिपीट कर लें, है ना। किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी भी जप की आवश्यकता नहीं है, केवल हम एक बंद कमरे में भी अगर हमारे पास वेंटिलेशन प्रॉपर है, अगर एक खिड़की है तो वहां रह के भी इसे हम कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग ये कह के इस बात को टाल जाते हैं कि हम खुली छत पे कहाँ से जाएंगे, हवा में कहाँ से जाएंगे और हम योग नहीं कर पाएंगे। दूसरी एक और भी बात मैं अगर कहना जी 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 मैम। डॉक्टर भास्कर जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, और आप इतना डिप्रेस मत होइए, आपके साथ बहुत लोगों की दुआएं हैं। मेरी मम्मी ने याद है आपके फिजियोथेरेपी सेंटर पे जब फेंट हो गई थी एंड यू गिव हर अ फर्स्ट एड, तो मेरी मम्मी ने यही, जब हमें पता चला तो उन्होंने यही बोला था कि जैसे उन्होंने मेरी जान बचाई है उनको कुछ नहीं हो सकता, ही इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो जरूर फाइट करके आएंगे। तो आपके साथ सबकी दुआएं थी तो आपको कुछ नहीं हो सकता था। Thank you so much, Dr. Bhaskar ji. Sir, privileged to have you today with us on this session. I mean, we've been hearing what is happening, what it is like actually going through this. But today, actually, it's an eye-opener, and I think a lot of positive mindset is there with all the people who are attending and the people who are watching on Facebook Live. As in, what it takes to survive it. I mean, the most important is हम लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कैसे avoid करें, but अगर I mean हम लोग सब लोग यही positivity है, we all think that हमको नहीं होगा, लेकिन अगर हो तो उसकी क्या तैयारी हो, उसका mental set, you know, आपका mental आप कैसे prepared हो, I think it's all about mental, because you are strong
And I think that's what I can say. I mean, it gives us a very thought process ki we see you surviving. You are not just a survivor but a warrior, and you've gone through we are privileged to have you today, sharing with you what it takes to survive corona. It's a privilege to have you, sir. Thank you so much, doctor. Thank you very much. Thank you. Yeah, Shruti, you can. Yeah. Now my next speaker is Mrs. Alpana Gupta ji. She is president of Radha Club and also socially very active. I think she should introduce herself also. मेरे को उनसे ये सजेशन लेना था कि if अगर हम लोग कुछ emergency number या कुछ elders के लिए कुछ line number अगर आप provide करा सकते हैं तो is that possible? क्योंकि अभी मैंने बेंगलुरु पुलिस के भी उधर सुना था because they have also started one elders helpline number like ambulance service हो गया, visit to doctors. So इन conditions को हम कुछ आगे बढ़ा सकते हैं या कुछ ऐसा helpline number हो सकता है elders का? राधना जी, are you there? Am I audible? मेरा नाम अल्पना है, मैं आराधना की प्रेसिडेंट हूँ। मैं सबसे पहले शिखा दीदी को नमस्ते कहूँगी, बबीता गुप्ता दीदी को नमस्ते बोलती हूँ। हेलो प्रिया, हेलो गरिमा एंड हेलो एवरीवन। जैसे कि श्रुति ने मेरे को जो क्वेश्चन किया है तो मेरे लिए उसका रिप्लाई ये है कि जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। और सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए हेल्प देने के लिए जो बेंगलोर सिटी ने पुलिस ने ये पहल की है, ये बहुत अच्छी है। मैं ऐसा मानती हूँ कि सारे प्रदेशों की जिला पुलिस को बेंगलोर पुलिस की इस पहल को अपना रोल मॉडल मानते हुए इसको अपनाना चाहिए। मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी नाथ जी से निवेदन करूंगी कि सीनियर सिटीजन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर सिंगल विंडो सिस्टम के साथ शुरू कराया जाए। और मैं इसके लिए उनको अपील भी करूंगी और उनसे बात भी करूंगी कि सीनियर सिटीजन की जो भी समस्या हो वह इस नंबर के माध्यम से पूरी की जाए, चाहे वो एम्बुलेंस सर्विस की हो, मेडिसिन डिलीवरी की हो या डॉक्टर से कंसल्ट करना हो। पेंशन की भी समस्या सीनियर सिटीजन को होती है, वो भी इस हेल्पलाइन नंबर से की जाए, पूरी की जाए। ये हेल्पलाइन नंबर हर जिले में लागू होना चाहिए और इस हेल्पलाइन नंबर की ऐसी एक कार्य प्रणाली होनी चाहिए कि इससे कार्य तुरंत हो जाए, किसी को भी वेट ना करना पड़े। और मैं यही कहना चाहूँगी कि यह हेल्पलाइन नंबर हर जिले में लागू हो और मैं इसके लिए मुरादाबाद में प्रयासरत भी रहूँ। और आप बताइए श्रुति, बुजुर्गों के लिए और हेल्पलाइन नंबर के अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस समय जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं उनको मेडिटेशन करना चाहिए, जैसे कि आध्यात्मिक पूजा। वो अपने आप को अकेला ना समझें, बस सीरियल देखें, अपने मन को केंद्रित करें। चिकित्सा से रिलेटेड उनको जैसे कभी कॉमन कोल्ड हो तो गवर्नमेंट की जो मतलब जो क्वालिटी जो गाइडलाइंस आई हैं वो उनको फॉलो करें और गुनगुने पानी का प्रयोग करें, काढ़ा पिएं, घर के बाहर ना जाएं, आइसोलेशन करें, मित्र मंडली से कॉन्फ्रेंस करें, मन की बात करें, डेली मन की बात करें। जो सीनियर सिटीजन अकेले रहती हैं, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, वो डेली अपने बच्चों से बात करें और कोई भी परेशानी हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, चाहे फोन पर करें या वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस करें। और ज्यादा न्यूज नहीं देखें, इससे उनके मन को मतलब कोरोना को लेकर बहुत पीड़ा होगी। मेडिकल शेड्यूल का कठोरता पूर्वक पालन करें और डेली एक्सरसाइज करें। जो बुजुर्ग हैं वो बच्चों के साथ ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ज्यादा उनके साथ ना रहें, क्योंकि बुजुर्गों को थोड़ी सी कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम तो रहती ही है। मैं यही कहना चाहूंगी। थैंक यू डॉक्टर भास्कर को डॉक्टर भास्कर के लिए कहना चाहूंगी, डॉक्टर भास्कर ने एक योद्धा की तरह हम सबको लड़ना सिखाया। मैं उनकी इस लड़ाई को जीतने के लिए उनकी प्रशंसा करती हूँ। जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने एक लड़ाई एक योद्धा की तरह लड़ी है, ऐसे योद्धा को मैं सैल्यूट करती हूँ। और मैं आप सबसे भी अपील करती हूँ कि आप सब भी उनको सैल्यूट करें, उनके लिए एक क्लैपिंग।
Thank you, Shruti. Thank you so much, Alpna ji. Thank you, thank you. आज के हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं अंकित मिश्रा जी, जो कि दिल्ली से हैं। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अंकित जी का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अंकित जी, आज आपने इस मीटिंग के लिए हमें ज्वाइन किया। क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट अंकित जी। ही इज द फाउंडर ऑफ Hindustan Medical Mind. It is a health publishing magazine. Ankit ji belongs from Rewa, from Uttar Pradesh, but he works in Delhi. He is involved in projects like US RCM, which is US healthcare business, where he deals with American doctors and insurance companies and help them to get their payment on time. A very warm welcome, Ankit ji. Thank you so much, Stuti. It's really very good to see you all. अंकित रहेगा। Am I audible to you? Yeah. Hello. All right. Yes. So first of all, my salute to Dr. Bhaskar sir, and thank you so much for sharing your all experiences. So that's really important. The situation which we are going through with COVID-19, इसमें सबसे ज़्यादा important है कि how we can be mentally fit. And even now I have initiated a lot of projects on it, और मैं खुद से I am making some kind of videos on it where I am sharing the stories, the real case stories which I am taking from the big psychiatric hospitals and psychiatric doctors. So there I'm trying to educate people and to let them know that how important the mental health is. Like physical changes हमारे में कोई भी होता है, it's very much easy to notice कि हमारे में ये changes हो रहा है, वो changes हो रहा है. But जब mental changes होता है, we are not at all aware of it. And there's a very big game of mental health towards anything. So on this we are working a lot, and also I'm designing one course on it, on the conscious and subconscious mind, that how we can deal with the problems. Because generally when we are getting some problems in our life, we start reacting on it instead of acting on it. So these are all the things I'm doing right now, and also along with that I'm connected with a lot of doctors, जहाँ से मुझे I came to know कि there are a lot of, especially अगर मैं बात करूँ dentist की, so there are a lot of group of dentist doctors who are getting in depression kind of thing, because they're not able to treat the patients and they are getting calls of the patients continuously. So for them, we are also trying to make some kind of artificial intelligence guesses whenever that, so how they can help the patient in this COVID-19 situation and even after that. Stuti, I guess you're saying something, but you're not audible. Yeah, Ankit, in the mid, I think we couldn't hear you. So I think we can quickly, get your suggestions and. Ankit, go on, please. Yes, ma'am. So it's good to see ma'am after a lot of time. So yes, we are designing as I shared, we are designing the course on it, on the psychology, how we can help basically, because it's the most important topic nowadays. Even अगर मैं बात करूँ boys locker room, तो अभी हमें सिर्फ एक ग्रुप का पता चला है, boys locker room, जो कहीं पे चल रहा है. There are a lot of things which is going on, और ये result है हमारी psychology, हमारे mental health का. Even if I talk about offline also, there are a lot of groups, they are similarly going on. मुझे अभी एक और ग्रुप का पता चला है, that is a girls locker room. So it's all the game of mental health and psychology, how we deal with it, and it's our responsibility that how we can take care of it, along with sympathy. Generally in our life we try to show the sympathy with everyone, but we don't know anything about empathy, which is the most important concern nowadays. So as I said prior, like instead of reacting, we have to start acting in each and every situation, and we have to think a lot.
सो अंकित जी, मेरा जो आपसे क्वेश्चन था, क्योंकि आप बहुत सारे डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहते हैं, सो आपके पास कुछ कोरोना वायरस से रिलेटेड अपडेट्स हैं जो आप उस दिन मेरे साथ शेयर कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी आप सभी के साथ शेयर करें। और सेकंड क्वेश्चन, आपने बताया था कि स्ट्रेस की वजह से हम बहुत ज्यादा कोरोना से प्रोन हो जाते हैं, तो उसके बारे में मैं चाहूंगी आप सबको बताएं। जैसा कि मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी हर चीज में। हमारा मैं कोविड की बात करूँ तो ठीक है, कोविड के अलावा भी एक और प्रॉब्लम मैं एड्रेस करना चाहूंगा इस टाइम पर। कोविड-19 की वजह से लोगों को इतना डर बैठ गया है दैट अगर उनको कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कोई और भी सिम्टम्स हैं, सो दे आर नॉट एबल टू गो टू द डॉक्टर और टू द हॉस्पिटल, इस डर से कि कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए डॉक्टर से कांटेक्ट में आने के बाद, हॉस्पिटल जाने के बाद उनको कोविड ना हो जाए, उनको कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वी ऑल आर ट्राइंग टू वर्क इन दिस इन द मेंटल हेल्थ सेक्टर। और कोविड-19 की जो अपडेट्स है स्तुति, सो देयर आर नो सच अपडेट्स एज ऑफ नाउ एज ma'am and sir shared about how to increase the immunity. That only we can do, and we can work mentally and psychology how we can make it strong. Rest, we have to follow the government guidelines. And great insight we've got from Ankit. Thank you so much. I think it's really good to have everyone's views, and I would like to thank everyone. But before that, I think it's very important. We've spoken about a lot of mental and health related thing, and today, after listening to Dr. Bhaskar, I understand what it exactly is to be part of this COVID, actually, because we all are inside the house, all safe. I think my very important question before we come to an end of the session, which we are about to win, is what are the challenges? One is supporting people by food, supplies and everything, but for how long? I mean, for how long can we do it? And if we have anyone from the industry or from MSME who are running their businesses and who are facing challenges, if they can unmute and speak, I mean, it'd be a great feedback for us to give to ministry, as we work very closely with MSME and other social enterprises. It would be really great to have your feedback. If any one of you who's running small factories or who are running their businesses would like to tell me what are the challenges they are facing, what kind of measures they were looking forward, but we didn't hear. Maybe Shruti, I can hear from you, and then we can go to others. You are one of the entrepreneur. I know one major thing which comes to my mind is people to comply with. Like if you have a manufacturing employees are not able to come because the local conveyance is not there, how do you continue your business and how do you continue paying your debts, if any? So if we can, quickly talk about this, because Women Waiter is all about finally getting the, overall benefit to the economy, about the GDP, and that happens only when there's actual exchange of money. So Shruti, if you can add, and we can go to more people here. Yeah, actually, I am an entrepreneur, but I think it will take time, because right now our factories are closed. We are not doing any manufacturing. We are not, we are not got the permission to do. So I think it will take some time, but gradually we'll cover up, because we have our, everything, the whole setup. So I think it will take time. Okay, so anyone else who is from? Yeah, Dr. Santosh Sahi, she is from Delhi. She is also involved in so many NGOs. She's very social active, and she just want to share some very important points to us. So Dr. Santosh Sahi ji, please, can you? Hello, can you hear me? Good evening. Well, yes. Almost good evening, everybody. And thank you very much, Shruti, for inviting me on your panel. Am I audible? After listening to so many panelists, I have a very, very small therapy which can really help each and every problem. Before I introduce that therapy, I will just give you very, very brief introduction of myself. Basically, I'm a gynecologist. I run a medical hospital in Jangpura, Delhi, and
I have an NGO, Women Healthcare Organization. Through that, we are doing a lot of work for children and women. Then I have Delhi Academy of Laughter Yoga. I don't know if any one of you have heard about laughter yoga. Anyone? Really? No? That breaks my heart. No, I think Dr. Bhaskar is raising his hand, and that is yoga. I'm talking of laughter yoga, Hasya Yoga. Hasya Yoga is getting so popular. And ये योगदान इंडिया का है. This is being practiced in more than 110 countries all over the, even conservative countries like, you know, UAE, Iran, in those countries also being practiced, but somehow अब हमारी देन है मगर हम लोगों को इतना पता नहीं है. तो क्योंकि काफी लंबा आपका पैनल हो गया है, तो आई विल ब्रीफली जितने भी इस वक्त प्रॉब्लम्स डॉक्टर बबीता ने बताए हैं, फिजिकल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, ये सारे अगर हम रेगुलरली हंसें, तो हम इसको खत्म कर सकते हैं. सब रोगों की एक दवाई, हंसकर देखो बहनों और भाई. Laughter is a best medicine. Very popular proverb. But why should we get sick and then, you know, use laughter as medicine? Okay, so if, and what we believe, laughter is the best tonic for physical, mental, social, psychological and spiritual health. Sharik, Mansik, you know, Adhyatmik. So we go a little bit further. If we laugh every day, we can use it as a preventive medicine. Can I come on the big screen so that, you know, people can see better? Anyway, I'm sure everyone can hear me. So, अगर हम रोज हंसे, according to the scientific study, if we laugh every day for 10 to 15 minutes, we won't fall sick very easily. And even if we are suffering conditions, jitni ki Dr. Babita ne mention kari hai, and otherwise due to our recent situation of COVID, we can all face it very easily, basically with just simple laughing. According to the research, laughter, अगर आप देखें तो जैसे ही हमने देखा है, आप अगर छोटी सी स्माइल भी दें और जरा सा भी हंसे, तो आपके अंदर एक फील गुड हार्मोन, जिसको कि हम एंडोफिन्स बोलते हैं, इमीडिएटली रिलीज होता है और उससे हमारा एकदम मूड बदल जाता है. उसके बाद जब हम हंसते हैं तो हमारे अंदर एक कॉकटेल ऑफ केमिकल्स बिसाइड एंडोफिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, ये सारे जनरेट होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. तो इसमें क्या है, दिस रिड्यूसेस द स्ट्रेस, बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम, जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं. वी ऑल नीड दैट सिस्टम टू बूस्ट, टू गेट अ लॉट ऑफ इम्यूनिटी. तो दैट हेल्प्स, यू नो, विद लाफ्टर. उसके अलावा डिप्रेशन को कम करना, एंजाइटी को कम करना, फियर ऑफ कोरोना को लूज करने के लिए दिस इज ए वेरी गुड टॉनिक. इसके अलावा खास करके सीनियर्स में लोनलीनेस कैसे खत्म कर सकते हैं, आइसोलेशन कैसे खत्म कर सकते हैं और अपनी esteem को कैसे बढ़ा सकते हैं. These are all the benefits. There are all benefits, and the beauty is that there is no side effect. And this is a free medicine which is available freely. You can laugh alone. You can laugh in a group. You can laugh without making noise. You can laugh without, you know, disturbing anyone. There are different therapies which we promote, or basically we run, you know, these therapies for different groups. And जैसे कि senior citizens, children, corporate world में it is getting very popular because there is so much stress. तो अब क्योंकि हम लोग
ये जाके लोगों को करवाते हैं सेशंस, मगर इस वक्त लॉकडाउन की वजह से ये पॉसिबल नहीं है, और स्पेशली इस वक्त ये इतनी फियर है, इतना डिप्रेशन है, इतनी स्ट्रेस है. ऑल दिस सिचुएशन वी आर रनिंग सेशंस ऑनलाइन, जिसका आप लोग फायदा उठा सकते हो. और हमारा ऑलमोस्ट होल डे प्रोग्राम्स चलते हैं, स्टार्टिंग इन दिल्ली NCR, and there are even international programs also on. So if anyone is interested, I can send you the link, because I am making my presentation very brief. मुझे पता है बहुत लेट हो चुका है, तो if you are interested, I can send a link and people can have it. Surely, ma'am. Surely, Santosh, ma'am, Dr. Santosh, I think it would be great if you can share the link. And yeah, I will share the links and you can try, because हमारा दिल्ली और NCR like Noida and Gurgaon ये सब इकट्ठा चल रहा है. Monday, Wednesday and Friday we have international, जहाँ के हमारा पूरे दुनिया के लोग हमें unite करते हैं. And I think you must share that and have experience. So just to finish my talk, because I don't want to prolong it, basic message मैंने आपको दे दिया है. I would request Babita ji, is she around? She runs special fun programs on every Sunday. I would like if she can give me an opportunity, I can do a demo for their group to see how it works. And in the end, basically हमारा मकसद जो है कि स्पेशली श्रुति जी ने बोला था कि इस फॉर सीनियर्स, तो सीनियर्स के लिए हम वी डू ए प्रोग्राम दैट इज लाफ्टर फॉर हैप्पियर एंड हेल्दियर ग्रेसफुल लिविंग. मगर ये है कि आई डोंट नो द स्टेटस ऑफ योर सीनियर सिटीजन, इफ दे कैन हैव ऑनलाइन प्रोग्राम, और if they can have on WhatsApp, one can have a demo. And thank you so much, Dr. Santosh Sahi ji. It's been a pleasure to be here. I just want to first of all salute all the doctors who are really working hard for us. And over to Stuti. Hello everyone. Thank you so much for your time, for your precious time you have given to us, to all the doctors, Dr. Babita Gupta, Shikha Gupta ma'am, Priya ji, Alpana ji, Ankit ji, and Dr. Bhaskar and Dr. Santosh ji. Also Garima ji. Thank you so much. Thank you very much for having us. Thank you to our lovely audience also. I hope you got answers to all your questions. And if you have any queries, you want to ask anything, you can comment on our Facebook Live. You will get all your answers over there. Thank you so much for joining, everyone. Thank you. Thank you.